نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 49 to 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولاً، اور رسول ہوگا، الی طرف بنی اسرائیل کے، انی بے شک میں۔ اب یہ انا ہے لیکن اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے، تو میں جب بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ربی میرا رب، تو ایسے میں یا میرا، انی بے شک میں، قد تحقیق، جیتکم جی لایا، کم تمہارے پاس، اور بیچ میں جو تا پہ پیش ہے اس کا معنی ہے میں، ٹھیک ہے، میں لایا تمہارے پاس۔ اب یہ اگر بریک کریں تو جیم یا حمزہ جی لایا، تا پہ پیش ہے تو میں، اور کم تمہارے پاس، بیااتن ایک نشانی، تنوین ہے نا تو ایک نشانی، اب بھی کا معنی ہے ساتھ، لیکن اب آپ یہاں ساتھ کوئی سینس نہیں بن رہا کہ ساتھ نشانی، تو ایک نشانی تنوین ہے تو اس کی وجہ سے ایک، من ربکم، من سے ربکم، ربی رب، اور کم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، اخلق میں بنا دیتا ہوں۔ اب حمزہ پر جو زبر ہے نا اس کا معنی بھی ہے میں، اور خلق آپ کو پتہ ہے بنانا، میں بنا دیتا ہوں، لکم لیے تمہارے، لا لیے کم تمہارے، من الطین مٹی سے، کا حیا مانند شکل کے، کا حیاتی کا مطلب ہوتا ہے مانند، حیت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو مانند شکل کی، کیسی حیت ہے اس کی کسی بھی چیز کے لیے، تو مانند شکل، الطیر پرندے کی، طیرن پرندے کو کہتے ہیں، فانفقوا فا پھر، انفقوا حمزہ آیا تو پھر میں اور نفخ ہوتا ہے پھونک مارنا، پھر میں پھونک ماروں گا، ٹھیک ہے، فانفقوا پھر میں پھونک ماروں گا، اور یہ پھونک وہ بھی ہوتی ہے جو قیامت کے لیے ایک سور پھونکا جاتا ہے نا، اس سے بھی پھونک کہتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ پرندوں کو پھونک ماروں گا، ٹھیک ہے، فانفقوا پھر میں پھونک ماروں گا، فی اس میں، فیکون تو وہ ہو جائے گا، طیرن ایک پرندہ، باذن اللہ، اذن کہتے ہیں نا اجازت سے، اردو میں بھی بہت یہ ورڈ بولا جاتا ہے، تو باذن اللہ اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے اذن سے پھونک ماریں گے تو وہ پرندے جو ہیں پھر اڑنے لگیں گے، یہ تفصیل میں آپ کو بات پتہ چلے گی۔ وَأُبْرِئُ اور میں اچھا کر دیتا ہوں، پھر حمزہ پر پیش ہے میں، بری مطلب بری کر دیتا ہوں، بیماری سے بری کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وَأُبْرِئُ اور میں بری کر دیتا ہوں یا میں اچھا کر دیتا ہوں، بارا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، بری الاکمہ مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو، والابرس اور برس کو جسے ہم کہتے ہیں نا، بارہ سات برس، اس کا اردو میں بھی اکثر لوگ بولتے ہیں اسے برس کی بیماری ہو گئی ہے، تو وہ جو نشان سے پڑ جاتے ہیں، استغفر اللہ، اور کوڑی بھی کہہ سکتے ہیں، تو والابرس برس والے کو یا کوڑی کو، وہی پھر حمزہ پر پیش ہے، اور میں حی سے زندہ کرنا، اور میں زندہ کر لیتا ہوں،
वही मौता मर्दों को बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के साथ। वउनब्बिउकुम, और मैं खबर देता हूँ या मैं बताता हूँ तुमको। कहते हैं ना खबर को, मैं बताता हूँ तुमको या मैं खबर देता हूँ तुमको। बिमा, साथ इसके ताकुलून, तुम खाते हो। वमा तद्दाखरून, वमा, और जो तद्दाखरून, तुम जखीरा करते हो। ठीक है, तो ये होता है कि किसी चीज को जमा करके रखना। फी में बुयूतिकुम, अपने घरों में। बैतुन घर को कहते हैं, बुयूत उसकी जमा है, और कुम अपने घरों में। इन्ना, बेशक, फी ज़ालिका, इसमें, ला आयातिन, अब आपने इसको ला नहीं पढ़ना, ला आयातिन, ला का मतलब अलबत्ता, ला पढ़ेंगे तो मतलब मुजरमानियों का नहीं, तो ला आयातिन, अलबत्ता एक निशानी है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन अगर तुम हो तुम मुमिनीन, ईमान लाने वाले। और मुसद्दिक़न लिमा, मुसद्दिक़ यानी तस्दीक करना, मुसद्दिक़न लिमा, तस्दीक करने वाला हूँ, लिमा, वास्ते उसके, जो बैना यदैये, मेरे सामने है, यानी मेरे हाथों के सामने। कई बार इस वर्ड के मीनिंग बता चुकी हूँ। बैना यदैये यानी जो मेरे सामने है, मिनत तौराती, से, तौरात में से, वली उहिल्ला, और ताकि मैं हलाल करूं, लकुम, लिए तुम्हारे, बाद वो चीज, हुर्रिमा, जो हराम की गई, अलैकुम, तुम पर, और जीतुकुम, और मैं लाया हूँ तुम्हारे पास, भी आयातिन, एक निशानी, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फत्तकुल्लाह, पर डरो अल्लाह से। ये वर्ड कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग। वअतीऊन, और इताअत करो मेरी। अतीऊन के नीचे जेरा, तो या का साउंड दे रहा है, या का मानी दे रहा है, जैसे हम कहते हैं ना रब्बी, रब मेरा। वअतीऊनी, और इताअत करो मेरी। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, रब्बी, मेरा रब है, और रब्बुकुम, और तुम्हारा रब, फ़अबुदूहु, बस इबादत करो उसकी। हाज़ा, सिरात मुस्तक़ीम, ये रास्ता है सीधा। फलम्मा, फिर जब, अहस्सा, महसूस किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने, मिनहुम, उनमें से, मिनहुमुल कुफ्र, उनमें से कुफ्र को, क़ाला, बोले, मन अंसारी, कौन मेरा मददगार होगा। अंसार देखें नसर से, नसर का मतलब होता है मदद करना, और अंसारी मदद करने वाला। तो मन कौन, अंसारी, यह लगी हुई शुरू में, तो आखिर में तो मेरा, कौन मेरा मददगार होगा, इल्लल्लाही, अल्लाह की तरफ। क़ाला, कहा, क़ालल हवारियून, कहा हवारियों ने। अब हवारी जो होते हैं ना, मददगार लोगों को कहते हैं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मददगार लोग थे, जो उनके साथी थे। क़ाला, कहा, अल हवारियून, हवारियून, हम अंसारुल्लाह, मददगार हैं अल्लाह के। जब उन्होंने पूछा ना कौन मेरा मददगार होगा, तो उन्होंने कहा हम मददगार हैं अल्लाह के। ज़ाहिर अल्लाह के मददगार हैं तो उनकी भी मदद करेंगे ना। आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वशहद, और गवाह रहिए, बेअन्ना, बेशक हम, मुस्लिमून, मुसलमान हैं। रब्बना, अब फिर दुआ आ रही है, रब्बना, ऐ हमारे रब, आमन्ना, ईमान लाए हम, बिमा, साथ इसके, जो अंज़लता, तूने नाजिल किया, वत्तबाना, और पैरवी की हमने, वत्तबाना रसूल, और पैरवी की हमने रसूल की। वत्तबा, इत्तबा से ना पैरवी करना। फक्तुबना, फिर अक्तुब, लिख ले ना हमको, बस लिख ले हमको। कताबा से, ये काफ्ताबा, किताबत होती है ना लिखना,
और इक्तुब है यानी फेले अमर है कि बस लिख लेना हमको मा शाहिदीन गवाहों के साथ। व और मकरू उन्होंने एक चाल चली, ठीक है। मीम कैप्राइज का रूट वर्ड है और वालिफ यानी ये माजी का सीगा है जमा का, ठीक है। तो वह मकरू और उन्होंने एक चाल चली, वह मकर अल्लाह तदबीर अल्लाह की। अब देखें है ये वही वर्ड मकरी, लेकिन अल्लाह के लिए मकर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ये होगा कि तदबीर की अल्लाह ने। इस बात को याद रखिएगा कि बंदों के लिए बात होगी तो मकर लिख सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब बात होगी तो मकर नहीं, वह मकर अल्लाह और तदबीर की अल्लाह ने। वल्लाहु और अल्लाह खैरुन बेहतरीन है अल-माकिरीन तदबीर करने वालों में से। यहाँ भी अल्लाह की बात हो रही है तो माकिरीन यानी तदबीर करने वालों में से। मकर होता है तो कोई चाल और माकिरीन होता है चाल चलने वाले। तो अब चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात हो रही है तो वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह सबसे बेहतरीन है तदबीर करने वालों में से। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने 49 आया में पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा और उन्हें कहेगा कि बेशक मैं तुम्हारे पास रब की एक निशानी लाया हूँ। अब फिर वो बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए परिंदे जैसी शक्ल का मिट्टी से परिंदा बनाऊंगा, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाएगा और अल्लाह के हुक्म से मैं पैदाइशी अंधे और कोड़ी को ठीक कर दूंगा, मुर्दों को जिंदा करूंगा। यानी अल्लाह ताला के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ तुम खाकर आते हो, जो कुछ तुम अपने घरों में जखीरा करके आते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम ईमान वाले हो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। यानी यहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुअज्जिज़ात हैं जो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सामने कलाम शुरू हो रहा है और वो अपनी कौम को ये चीजें बता रहे हैं। तो जैसा कि फरमाया गया कि फिर तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके ज़माने की मुनासिबत से मुअज्जिज़ात अता किए। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने हर नबी को इसलिए मुनासिबत से मुअज्जिज़ात अता किए कि जैसा उस वक्त का दौर होता है, जिस तरह लोगों का मिजाज होता है और जैसे हालातों से उसी तरह नबियों को, अम्बिया को मुअज्जिज़ात दिए जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का जोर था, जादूगरों की बड़ी इज्जत की जाती थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मुअज्जिज़ा दिया कि जादूगर दंग रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह ताला की दी एक ताकत है अपने नबी को, लिहाजा वो अल्लाह के नबी पर ईमान ले आए और मुसलमान होकर अल्लाह के नेक बंदे बन गए। आपको याद है ना कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में जाकर वो रस्सियां डाली थी तो कैसे जादूगर और कलाम जब सुनाया तो वो उनकी झाड़ियां रोते रोते तर हो गई, वो सिद्धों में गिर गए, जबकि उन्हें पता था कि फिरौन बहुत जालिम बादशाह है और वो उनका क्या हाल करेगा। उसने सजा भी बता दी कि देखो मैं तुम लोगों को एक तरफ से एक हाथ और दूसरी तरफ से पांव काट दूंगा, सूली पे लटका दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने रब पर ईमान ले आए, ईसा के रब पर, यानी हमें यकीन हो गया ये हजरत मूसा के। तो लिहाजा वो एक जादू का दौर था, जादू का जमाना था, ठीक है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने अंबिया को इसी तरह मुअज्जिज़ात अता किए और फिर मुसलमान होकर अल्लाह के नेक बंदे बन गए। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ मबूस किया। बनी इसराइल जो थे और इन्हें भी इसी जमाने के हिसाब से मुअज्जिज़ात दिए गए। बनी इसराइल के बारे में बहुत डिटेल से सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में चूंकि इनमें तिब का जोर था, यानी तिब का बहुत जोर था, हिकमत तिब जैसे होते ना बीमारियों का इलाज। तो ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मुअज्जिज़ात अता किए जिनसे बड़े बड़े नामवर हकीम और तबीब भी दंग रह गए और उन्हें ये भी पता चल गया कि ये वाकई मुअज्जिज़ात हैं जो किसी इंसानी इल्म का नतीजा नहीं, यानी जो किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये अल्लाह ताला ही की तरफ से दिए गए मुअज्जिज़ात हैं। अभी हज़रत ईसा ने जब बताया, ये जब जवान हो गए और
फिर रब की तरफ निशानी देकर उन्हें भेजा गया। तो इस तरह फिर उन्हें अल्लाह ताला ने मुआजिज़ात अता किए, जिसमें मुख्तलिफ तरह के मुआजिज़ात थे। उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से और मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए मिट्टी से, यानी वो मिट्टी का परिंदा बनाते थे, फिर उसमें बीज मिला, अल्लाह के इज़्न से फूंक मारते थे तो वो परिंदा उड़ने लगता था। ठीक है। और इसी तरह फिर उन्होंने फरमाया कि मैं उबरियू, मैं अच्छा कर देता हूँ बीमारी से, यानी उबरियू बरी कर देता हूँ बीमारी से। मादरजात अंधे, जो पैदाइशी अंधे लोग होते हैं, जब उन पर हाथ फेरते तो उनका कोर ठीक हो जाता, बिनाई पा लेते, उनकी बिनाई ठीक हो जाती। और फिर इसी तरह मुर्दों को भी इज़्न इलाही जिंदा कर देते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुआजिज़ा था। तो यहाँ ये फरमाया गया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी थे, कत्ल कर दिए गए। या अलैहिस्सलाम भी नबी है, मगर ये हज़रत ईसा रसूल है। ठीक है। तो फर्क ये है कि नबी को लोग कत्ल कर सकते हैं, मगर रसूल को कोई कत्ल आज तक न कर सका। इस बात याद रखिएगा कि जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, वो नबी थे, उन्हें बनी इसराइल ने कत्ल कर दिया था क्योंकि वो लोगों को बुराइयों से रोकते थे। याह्या अलैहिस्सलाम भी नबी थे, मगर हज़रत ईसा, मूसा, हज़रत इब्राहीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब रसूल हैं। तो रसूलों को आज तक कोई कत्ल नहीं कर सका, इस बात को भी याद रखिएगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब के मोहताज नहीं, वो जो कर चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ फिर आगे फरमाया गया कि इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मतलब पता चला है, क्योंकि जितने भी पैगंबर जमीन पर आए, मबूस हुए, सबकी बेइज्जत का मकसद एक ही था, तौहीद बारी ताला का इकरार और शिर्क से लोगों को बचाना, यानी लोगों को तौहीद का सबक देना कि एक अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से मना करना। यह हर नबी का एक ही तौहीद का पैगाम था। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को शिर्क से बाज रहने की तलकीन की और अल्लाह ताला की वहदानियत और उसी की इबादत, उसी को इबादत के लायक यानी समझने की दावत दी कि अल्लाह के बंदों की बंदगी नहीं करनी, उनका हुक्म नहीं मानना, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत वाला नहीं। अल्लाह ताला ही ने हमें पैदा किया, उसी की जमीन पे हम रहते हैं, उसी के जैसे कहते हैं तमाम नेमतों से लुत्फ अंदोज होते हैं, और फिर उसी रब की नाफरमानी करें तो ये तो फिर वही बात हुई कि इंसान जो है किसी मुल्क में रह रहा हो तो हम कैसे वहाँ के कानून को फॉलो करते हैं, और अल्लाह जो रब्बे कायनात है उसको अगर हम इस तरह नाफरमानी करेंगे तो फिर वही हुआ जो इन कौमों का हाल हुआ था। फिर यहाँ फरमाया गया कि नब्बियुकुम बिमा ताकुलून, यानी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चीज जो तुम घरों में खा के आते हो। यहाँ ये था कि ये 52 और 53 आया में कि फिर उन्होंने ये पूछा कि कौन है जो मेरी मदद करेगा, मन अंसारी, जैसे कि पूछा गया कि कौन है जो मेरी मदद करेगा। यानी दीनी कामों में मामनत करेगा। मदद से ये मुराद नहीं कि उन्हें कोई अपनी जाती मदद की जरूरत थी, बल्कि दीनी कामों में मेरी मामनत करेगा। और जब ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि लोग कुफ्र में जमे हुए और किसी सूरत भी गुमराही को छोड़ने का नाम नहीं लेते, तो आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह की राह में कौन मेरी मदद करेगा, यानी तबलीग में मेरा मुआविन कौन बनेगा। तो चंद लोग जो हवारी वो होते हैं जो सच्चे लोग होते हैं। हवारियों से मुराद सच्चे मददगार अपने नबी के, अपने पैगंबर के। तो वो जब उन्होंने पूछा कि कौन मेरी मदद करेगा, लोग किसी तरह ईमान ही नहीं लाते थे, तरह तरह से अज़ियतें देना, रोड़े अटकाना, उनकी मुखालफत करना। तो फिर उन्होंने ये सवाल किया कि तबलीग में मेरा मुआविन कौन होगा। तो चंद लोग आप अलैहिस्सलाम के मदद के लिए तैयार हो गए, जिनकी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तारीफ फरमाई।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत से कबल ये फरमाया था कि कौन है जो मुझे अपने पास बना दे। जब अहले मक्का ने उन पर जिंदगी तंग कर दी थी और कोई की जाए पना नहीं थी, तो उन्होंने पूछा था कौन है जो मुझे पना दे ताकि मैं लोगों को अपने रब का पैगाम पहुंचा सकूं। चुनांचे अंसार रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, यानी मदीना में उन्हें पनाह मिली, और अंसार जो थे अहले मदीना, उन्होंने अपनी जान माल हर चीज निछावर कर दी। तो वो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी कबूल की और आपको पनाह भी दी और आपकी हर मुमकिन मदद की। तो हवारी जो होते हैं वो सच्चे मददगार को कहते हैं। वो अंसारुल्लाह थे, यानी अल्लाह के मददगार, रसूल के मददगार। और ये हवारी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, उन्हें हवारी कहा जाता है। अंसारुल्लाह में और हवारी में फर्क याद रखिएगा। इसी तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया कि यही एक सिरात मुस्तकीम है, जैसा कि फरमाया ना कि मेरी इताअत करो, रसूल की इताअत ये नहीं कि रसूल की इताअत, बल्कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक रसूल जो कहे उस बात की इताअत करो। और फिर फरमाया कि रब पैदा करने वाला है, पालने वाला है, मैं उसका गुलाम बंदा हूँ। यानी उन्होंने अपनी कौम से कहा वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। अल्लाह के रसूलों ने कभी ये नहीं कहा कि हमें सिजदे करो, इताअत करो। इताअत से मुराद कि जो अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है, जो फरमान दिया है, जैसे कि तौरात और इंजील में भी अहकामात इलाही थे, उनको फॉलो करो, उन पर अमल करो। तो सिरात मुस्तकीम वही सीधा रास्ता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जाता है। यानी जुड़ जाओ अपने रब से, उसकी इबादत करो, उसी से जुड़ो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की गुलामी और बंदगी करो। यानी असल बात यह कि 24/7 उस रब के गुलाम बनकर रहो। जो रब मालिक कायनात है, उसी का हुक्म चलता है। वो अपने फैसले जो है अपने फैसले खुद करता है अपनी मसलहत के मुताबिक। उसके फैसलों पर कोई और अपनी राय मुसल्लत न की जाए। अपने रब की मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। तो ये है असल बात सिरात मुस्तकीम कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। इसी तरह इसी में जैसे कि ये आयत है और तस्दीक करने वाला हूँ मैं जो मेरे सामने है तौरात की, और ताकि मैं हलाल करूं तुम्हारे लिए वो चीज जो हराम की गई तुम पर। अब यहाँ जो है ये भी बताया जा रहा है कि देखो तुम ऐसा ना करना कि खुद अपनी मर्जी से हलाल और हराम के फैसले करने लगो। जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हलाल किया वो हलाल अल्लाह ताला ही को ये इख्तियार है, और जो चीजें हराम कर दी किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं कि वो हलाल और हराम का फैसला करे। ये हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। या ये नहीं कि हम किसी चीज को कोई और नाम दे के उसे अपने लिए हलाल बना लें। तो यहाँ फरमाया कि वो तमाम वो चीजें जो हराम हो गई हैं तुम पर, उन्हें अब हलाल करने का इख्तियार किसी इंसान के हाथ में नहीं। इंसान के अमाल की वजह से बाज़ औक़ात वो नेमतों से महरूम हो जाता है या कोई चीज नहीं खा सकता, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज उस पर हराम हो गई। लेकिन हलाल और हराम का इख्तियार इस तरह है कि जैसे शराब है, जुआ है, उसे अगर कोई और नाम देकर हलाल कर दिया जाए तो वो हलाल नहीं होगा। सूद है, अगर उसे ये सोच लिया जाए कि ये बस इसके बगैर तो इकॉनमी नहीं चल सकती, तो वो हलाल नहीं होगा। सरासर उसमें नुकसान तबाही है और कुछ नहीं। इसी तरह अगर हम ये कहें कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है तो वो हलाल नहीं हो जाएगा। म्यूजिक नहीं बल्कि कलाम इलाही, अल्लाह का कलाम और अहकामात इलाही की पाबंदी, ये है रूह की ग़िज़ा। कुरान इंसान के अंदर दिलों को मोम करता है और इंसान पर अपने असरात छोड़ता है। अगर हम दिल से तवज्जो से उसे पढ़ने की कोशिश करें, उसके मानी मतलब समझें, ये नहीं कि बस खाली ये तो हम देखते ही हैं कि साला साल हमने पढ़ा और जुज़ान में लपेट के रख दिया, लेकिन पल्ले कुछ न पढ़ा। ये अल्लाह की तौफीक, उसकी नेमत है कि अल्लाह ताला ने इस किताब से जोड़ा, हमें इसे पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने का
موقع فراہم کیا، صلاحیتیں عطا فرمائی، ہمارے لیے حالات استوار کیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ بس یعنی ٹولز بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں لایا ہوں ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس، اور وہ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر ٹولز بتا رہے جا رہے ہیں کہ انجیل کی آیات، پھر یہود نے جب انہیں نہ مانا اور کسی طرح انہیں ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یعنی انجیل تورات جو ان کی کتابیں تھیں اہل کتاب کی، یہ ان سے بھی اختلاف کرتے رہے، تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں ٹول دو عطا فرمائے۔ نمبر 1 فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اور نمبر 2 نبی نے کہا اطیعونی، اور اطاعت کرو میری، یعنی اگر جو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے مطابق، احکام الہی کے مطابق اطاعت کرو۔ پھر بھی یہود نے انہیں نہ مانا اور وہ اپنے ضدوں پر اڑے رہے، تو پھر آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا کہ قیامت کے لیے یہ قوم لعنت زدہ قرار دے دی گئی۔ اسی طرح پھر آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اب فرمایا کہ پیدا کرنے والا جو ہے وہ رب ہے، پالنے والا ہے، میں تو صرف اس کا ایک فاعبدوہ، بس عبادت کرو اسی کی، یعنی بس میں صرف اس کا ایک غلام ہوں، ایک بندہ ہوں۔ اللہ کے رسولوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری خدا نہ خواستہ، جیسے کہ ہم غیر اللہ جو ہیں ولیوں کو اتنے غلو کر کے ایسے درجات پر پہنچا دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پر جانا، ماتھے ٹیکنا، ایسی ہمارے دین میں قطعاً اس بات کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ سراسر گناہ ہے۔ تو لہذا انہوں نے فرما دیا کہ میں تو اللہ کا محض ایک بندہ ہوں، فاعبدو مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، میں اسی کا غلام ہوں، اور صرف اللہ کی غلامی اور بندگی کرو، وہی رب کائنات ہے، اسی کی غلامی جو ہے وہ ہم ہیں اللہ کے غلام۔ جس نے اللہ کی غلامی اختیار کر لی اس نے اپنی عاقبت سنوار لی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی گھر سے جو بھی کھا کے آتا تھا نا تو وہ بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ یعنی ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ جو چیزیں آپ لوگوں نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی نعمتیں دی تھیں، لیکن وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ انہیں جمع کر لیتے تھے، گھروں میں ذخیرہ کر لیتے تھے، جبکہ آپ کو پتہ ہے ذخیرہ اندوزی ہر دور میں غلط بات ہے، اس سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو وہ یہ بات بھی آنے والے کو بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں معجزات عطا کیے تھے ان میں سے کہ یہ بھی معجزہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب پھر یہ فرما دیا گیا جیسا کہ حواریوں کو کہ انہوں نے سوال کیا کہ کون میرا ساتھ دے گا، تو انہوں جو تھے حواری جو ان کے سچے ساتھی تھے، دوست تھے، جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی بن گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم، اور حواری کہتے ہی سچے مددگاروں کو۔ پھر 54 آیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس آیت میں یہود کی بدنیتی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے برگزیدہ نبی کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی کافر تھا، یہود نے اس بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اکسایا اور کہنے لگے کہ آپ کی سلطنت میں ایک شخص فتنہ پھیلا رہا ہے، لوگوں کو آپ کی اطاعت سے روک رہا ہے، یعنی بادشاہ جو تھے وہ تو اس وقت خدا بنے ہوتے تھے نا، اور انہیں گمراہ کر رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ اس باغی کو ابھی گرفتار کر صلیب پہ چڑھا دو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ انہیں یقین تھا کہ اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ایک شخص جو کہ آپ کے پاس اسی گھر میں تھا اسے
آپ کی شکل و شباہت عطا فرما دی۔ سپاہی اسے عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر کے لے آئے اور اسے صلیب پر چڑھا کر خوش ہونے لگے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، یعنی اللہ کو اپنے نبی کو بچانا تھا۔ اور میں آپ کو کل بڑی ڈیٹیل سے بتا چکی تھی کہ 33 ایئرز کی ایج میں حضرت میں کل یہ بتا چکی تھی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 ایئرز کی ایج میں دنیا سے اٹھا لیا گیا تھا، اور جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے تو 40 سے 50 سال، لاسٹ آیا میں ہم نے پڑھی تھی کہ وہ کہولت کی عمر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی ایک معجزہ عطا فرمایا کہ وہ پنگھوڑے میں بھی کلام کر رہے تھے لوگوں سے، اور کہولت میں جب آئیں گے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انہیں یہ اذن دیں گے، اور اللہ کے اذن سے وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بات تھی کہ انہوں نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح یہ جو ہے جب ان کا محاصرہ کر لیا، انہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے انہیں پکڑ لیا، جبکہ وہ نہیں تھے، ان کا ہم شکل ایک انسان تھا جسے وہ آج تک کسی خوش فہمی میں ہے یہ قوم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ہمارا کفارہ کر دیا، بس ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ تو یہ تو پھر روز قیامت ہی پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح آیات فرما دی جن کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی ان باتوں میں لا کے بے وقوف بنا لے، ہمیں اپنی فکر آخرت کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ پلیز تفسیر کو کم از کم سننا ضرور کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا سمجھ میں آیا ہے۔ قرآن کا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آئے نا کہ بھئی ہم نے پڑھا کیا ہے، ورنہ تو ہمارے لیے بھی مانی ہے۔ قرآن کوئی کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے عمل کے لیے کہ ہم اسے پڑھیں اور اپنے اعمال کو بھی درست کریں، صحیح اعمال جو ہم نے اختیار کریں اور اللہ رب العزت کی انشاءاللہ تعالی رضا پائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ